Hello friends, welcome to EduSet classes. Recently, Attorney General of India, Mr. A.K. Venugopala, has granted the consent to initiate the criminal contempt of court proceedings against Rachita Taneja for allegedly scandalizing the judiciary through her tweets and illustrations. The tweet was made in the context of the recent decision of the Supreme Court to grant bail to Arnab Goswami, who was arrested for allegedly awaiting a suicide. Similar proceedings were also initiated against the Prashant Bhushan or Kunal Kamra case or against the Shafali Vaidya or Swara Bhaskar. So, what is the law on the contempt of court and why is the consent of Attorney General is required to initiate the contempt proceedings, and under what circumstances is the Attorney General consent not required? Everything we will discuss in this video. So, first if we talk about the contempt of court, then contempt of court refers to the offense of showing disrespect to the dignity or authority of the court. Its main objective is to safeguard the interest of the public and public confidence in the administration of justice. Uh, con- uh, the Contempt of Court Act 1971. There is a Contempt of Court Act 1971 which outlines the procedure in relation to the investigation punishment for the court, and both the Supreme Court and High Court derives their contempt power from the Constitution. So it is mentioned in the Constitution. Okay, and the Contempt of Court Act 1971 divides the contempt into two parts. That is civil contempt and criminal contempt. So, what is civil contempt? Civil contempt means if someone is willfully disobeying the judgment of the court or order of the court. So, willful disobedience of the order of any court comes under the civil contempt. And what is criminal contempt? Criminal contempt means any publication or doing anything that scandalizes or lower the dignity and authority of the court, and that prejudices any judicial proceedings, and any act that interferes with the administration of justice comes under the criminal proceedings. Okay. And Contempt of Court Act 1971 का जो सेक्शन 15 है दैट डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ हाउ द केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएटेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल. सो सेक्शन 15 में डिस्क्राइब किया गया है. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? सो इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट the Attorney General has the power to initiate criminal contempt अगेंस्ट इंडिविजुअल. अटर्नी जनरल के पास और सॉलिसिटर जनरल के पास पावर रहती है. और इन केस ऑफ हाई कोर्ट द एडवोकेट जनरल के पास पावर रहती है टू इनिशिएट अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स. ओके, but why the Attorney General have to grant consent? And the consent of Attorney General is mandatory in all the contempt of court proceeding? So answer is no. Only when, here you can see, only when the Attorney General when the private citizen want to initiate a case of contempt of court against a person, then the Attorney General consent is mandatory. So अगर private citizen ने कोई motion initiate किया है, then Attorney General का consent mandatory है. Apart from that, अगर सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 129 एक सुओ मोटो पावर दिया गया है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स खुद से ही स्टार्ट कर सकता है. सो व्हेन द कोर्ट इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस as it did in the case of the Prashant Bhushan, then the Attorney General consent is not required, because the court is is exercising its inherent power under the Constitution to punish for contempt, and such constitutional power cannot be restricted because the Attorney General declined to grant consent. Because क्या हुआ था कि प्रशांत भूषण के केस में अटर्नी जनरल का अटर्नी जनरल ने मतलब डिक्लाइन किया था, उन्हें मना कर रहे थे, ही वॉज नॉट गिविंग हिज कंसेंट. तो उस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना सो मोटो पावर का यूज़ किया था. और प्रशांत भूषण का मेनली केस ये था
था कि जो प्रशांत भूषण सीनियर लॉयर है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे जी हैं, उनको उन्होंने एक बहुत महंगी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल पे से जाते हुए दिखाया था एट द टाइम व्हेन द कोर्ट इज़ अंडर द लॉकडाउन। तो उस केस में उनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सो मोटो पावर का यूज़ किया था। और उस टाइम पे जो बेंच बैठी थी अरुण मिश्रा की, उन्होंने बोला भी था, एज फार एज द सो मोटो पिटिशन आर कंसर्न देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर टेकिंग द कंसेंट ऑफ एनीबडी इंक्लूडिंग द अटॉर्नी जनरल बिकॉज द कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग इट्स इनहेरेंट पावर टू इशू अ नोटिस फॉर कंटेम्प्ट. Okay, and once the court take cognizance, the matter is purely between the court and the contemptor. So the only requirement is that the procedure followed should be just and fair, and it should be in accordance with the principle of natural justice. Apart from that, the attorney general consent is not needed. Okay, but why the attorney general have to grant a consent? मेन ऑब्जेक्टिव अटर्नी जनरल से जो प्राइवेट सिटीजन्स का होता है या अटर्नी जनरल के पास कोई मोशन जाता है तो उसका कंसेंट इसलिए लिया जाता है टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट। बिकॉज बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फेबुलस पटिशन्स भी फाइल हो जाती हैं, फेक पटिशन्स फाइल हो जाती है, तो उसको वेरीफाई करना कि वेदर द मोशन इज़ वैलिड और नॉट, ये चेक करने के लिए अटर्नी जनरल को दिया जाता है, जिससे कि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो। ओके, then what if अटर्नी जनरल डिनाइज कंसेंट? अगर अटर्नी जनरल ने डिनाई कर दिया तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जैसे कि हो सकता है अटर्नी जनरल डिनाई कर दे तो वो मैटर वहीं पे एंड हो जाता है। जैसे कि एक सौरभ भास्कर का केस हुआ था जिसमें जो वेणुगोपाल जी हैं, दे हैड रिफ्यूज टू ग्रांट द कंसेंट टू इनिशिएट द क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट सौरभ भास्कर फॉर एलिगली मेकिंग अ डेरोगेटरी कमेंट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ कमेंट किया था, तो उनके लिए एक मतलब एक मोशन पास किया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जिसको वेणुगोपाल जो हमारे अटर्नी जनरल हैं उन्होंने लेने से मना कर दिया था। ही रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेंट। एंड लेटर एक शेफाली वैद्या का केस था जिसमें उन्होंने 1 साल पहले कुछ ट्वीट किया था, बट और उनका अभी रिक्वेस्ट आई थी कि उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होनी चाहिए। तो उस टाइम पे भी जो अटर्नी जनरल है उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उनका बोलना ये था कि जो हमारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है उसमें मेंशन है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, उसने कोई ऐसा ट्वीट किया है, कोई ऐसा एक्शन लिया है दैट स्कैंडलाइज दी और लोअर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, तो उस केस में आपको वो विद इन 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। 1 ईयर का टाइम है, ये लॉ हैज़ द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद वो नहीं होगा। और जबकि उन्होंने बोला कि जो हमारे अटर्नी जनरल हैं इन्होंने बोला था कि ही टर्न डाउन द रिक्वेस्ट एंड शेफाली एंड द ट्वीट वर मेड ओवर द ईयर है। वो 1 साल पहले ये ट्वीट किया गया था, इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अभी मतलब प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट में नहीं होगी। बट इस केस में भी ये होता है कि अगर ये सेम इशू कोर्ट के पास चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सो मोटो पावर का यूज़ कर लिया, तो देन द कोर्ट डज टेक सो मोटो कॉग्निजेंस एंड इट डिड इन केस ऑफ प्रशांत भूषण। तो वहाँ पे सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर के कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट्सेल्फ अंडर आर्टिकल 129। ओके, एंड अंडर आर्टिकल 251 हाई कोर्ट को सो मोटो पावर दी गई है। हाई कोर्ट के पास सेम पावर है आर्टिकल 215 के अंदर। व्हाट हैपन्स आफ्टर द अटर्नी जनरल हैज़ ग्रांटेड द कंसेंट? एक बार कंसेंट अटर्नी जनरल ने अपनी राइटिंग में दे दिया, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है कि जो कंटेम्नर के अगेंस्ट में जो मोशन पास हुआ था वो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है उससे, तो कि इट इज़ एब्सकॉन्डिंग और अबेडिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग, देन उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो कंटेम्नर है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ही में फाइल द एफिडेविट को फाइल कर सकता है। और अगर उस केस में 2 जजेस की बेंच बैठेगी, अब वो उस एफिडेविट को चेक करेगी एंड देन अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करती है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।